Hello students, I'm Shreya Sethia and I'm a social science teacher. Today we are going to study chapter number 2, longitudes and latitudes of class 6th. In this chapter we are going to learn about the axis of the earth and the poles, the difference between latitudes and longitudes, the name of the important latitudes, about the heat zones of the earth, how to calculate time, the difference between local time and standard time, about time zones of the earth and international datelines. So let's start. First is globe. A globe is a three-dimensional model of the earth. You must have seen globe which is similar to this, right? It's a 3D model of the earth, right? It is mounted on an axis so that it can be rotated freely like the earth. Now this is mounted on the axis, on an axis like this. These are the two poles and mounted with axis so that it can rotate freely, ताकि वो freely rotate कर सके. It shows us the exact shape of the earth, spherical, slightly flattened at the poles and bulging at the equator. अब जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एग्जैक्ट शेप हमें बताता है, राइट. इट्स अ काइंड ऑफ स्फेरिकल शेप है, फ्लैटर्न एट दी पोल्स पर फ्लैटर्न है एंड ब्लजिंग एट द इक्वेटर. दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर. और इक्वेटर पे क्या है? ब्लज्ड है. ब्लज्ड मतलब अ काइंड ऑफ स्वॉलन, फुला हुआ होना, ठीक है. दिस इज स्वॉलन एट द equator and flatten from the pole. Look at this shape, flatten from both the poles, north pole and south pole, and bulged at the equator. This is the line of equator. Okay, the shape of the continent and oceans are shown quite accurately on a globe. The different physical features and place are also marked more or less clearly on the globe. Now the continents and the oceans like this are marked accurately on the globe, and some different physical features of earth is also more or clearly marked on the globe as similar to the earth. Okay, it is difficult to locate a place on a globe and correspondingly on the earth because a sphere does not have any side or corner. We need to have certain points or line which can be used as reference for locating places on earth. Now since it is difficult to locate a place on a globe, right, or on earth because it's in a sphere shape, वो sphere shape का होता है और उसका कोई कॉर्नर नहीं होता है या साइड नहीं होती ताकि हम उसे पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर सकें. सो वी नीड टू हैव सम लाइंस और पॉइंट्स जिससे हम रेफरेंस ले सकें और किसी पर्टिकुलर प्लेस को हम लोकेट कर सकें अर्थ या फिर ग्लोब पर, राइट. An imaginary line on which our earth rotate is called its axis. अब वो इमेजनरी लाइन जिस पे अर्थ रोटेट करती है, राइट, वो एक इमेजनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिन की हुई लाइन है जिस पे अर्थ रोटेट करती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस. नाउ दिस लाइन ऑन विच अर्थ रोटेट्स, राइट, ये एक सेंटर लाइन है और इसी लाइन पर अर्थ रोटेट करती है. यू मस्ट हैव सीन ग्लोब और उसे रोटेट भी किया होगा आपने. सो एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दी है और ये माना जाता है कि अर्थ उस पर रोटेट करती है और उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं. दिस लाइन, दिस हाईलाइटेड लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. ओके, ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. It passes through the center of the earth and its two ends are known as pole. Now this passes from the center of the earth. earth के बिल्कुल सेंटर से, राइट, ये
पार्ट है और ये एक पार्ट है, एग्जैक्टली सेंटर से ये पास करती है, राइट। सो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, राइट। और इसके दो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं। दिस टू एंड्स आर कॉल्ड पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब वो साइड जो नॉर्थ में है वो कहलाती है नॉर्थ पोल, जो साउथ में है वो साउथ पोल। आपको ये तो डायरेक्शंस तो पता ही होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो ये नॉर्थ साइड में है इसीलिए नॉर्थ पोल, ये साउथ साइड में इसीलिए साउथ पोल। ओके, these two poles are two fixed points of reference of the earth's surface and all other lines are drawn with respect to these points. Now these two points, these two ends, it means north pole and south pole are fixed. ये फिक्स्ड माने जाते हैं और अर्थ की सरफेस पर, और बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो इसके डिफरेंस से या इसकी हेल्प से ही ड्रॉ की जाती हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हेल्प से ही बाकी सारी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। दे ऑल आर इमेजनरी लाइंस, और इसे क्यों ड्रॉ किया गया है? ताकि एक पर्टिकुलर लोकेशन को या प्लेस को हम अर्थ पे या ग्लोब पर लोकेट कर सकें, ठीक है। The imaginary line drawn exactly midway between the two poles is called the equator. Now, एक इमेजनरी लाइन को ड्रॉ किया गया है बिल्कुल मिडिल में, एग्जैक्टली इन द मिड वे बिटवीन द टू पोल्स, दोनों पोल्स के बीच में मिड में एक लाइन को ड्रॉ किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्व्स और हेमिस्फीयर्स, और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, राइट, जिसे हम हेमिस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हेमिस्फीयर। ओके, the part of the earth that lies in the north of the equator is called northern hemisphere and the part to the south is called southern hemisphere. Now this is equator, दिस इज इक्वेटर। अब यह अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, राइट। नाउ द पार्ट इन द नॉर्थ साइड अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज ये नॉर्थ साइड में, राइट, इसीलिए इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट इज द पार्ट विच लाइज बिलो द इक्वेटर or in the southern direction, south direction, is called southern hemisphere. This is northern hemisphere and this is southern hemisphere. Okay, a set of imaginary horizontal lines drawn between the two poles are parallels of latitude. Parallels to the equator are called parallels of latitude. They run in an east-west direction. Now, there leaving poles and equator, there are more imaginary lines, और भी imaginary lines को draw किया गया है। Now, the horizontal line, suppose this is our earth and हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल इट मीन्स लाइक दिस, वो लाइंस जिन्हें हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया गया है, जो दोनों पोल्स के बीच में ड्रॉ की गई हैं, दिस टू पोल्स, राइट, इसे क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। Another set of imaginary vertical lines. Now suppose this is our earth, right, और imaginary ये दोनों poles हैं, right. Another set of vertical lines drawn from the north pole to the south pole are called meridians of longitude. Now ये lines हैं जो north pole से south pole की तरफ draw की जाती हैं, like this. Okay, north side and the south side, they are called meridians of longitude. They run from north to south direction, north से south direction की तरफ
रन करती हैं और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ. दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड दे आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. what are they we will further study in next topic. तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. हमने कुछ इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस पढ़ी हैं जैसे कि इक्वेटर, द सेंटर लाइन और द मिडवे बिटवीन टू पोल्स. दोनों पोल्स हमने पढ़े हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड दिस एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, right? So next which we are going to study is latitudes. The latitudes of a place is the angular distance of that place north or south of the equator is measured from the center of the earth. It is measured in degree. Distance between 2 degree of latitude is 111 kilometer. Each degree is divided into 60 minutes and each minute is further divided into 60 seconds. Now latitudes क्या है? Latitude of a place is the angular distance of that place. Now latitudes क्या हैं? एक इमेजनरी सेट ऑफ लाइंस हैं जो पर्टिकुलर प्लेस की डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करता है. वो नॉर्थ साइड में भी करता है एंड साउथ साइड में भी, या नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, राइट. और ये सेंटर से हेल्प करती है. ये जो इक्वेटर की लाइन होती है ये हेल्प करती है मेजर करने में, राइट. Now the distance between 2 degree of latitudes. Now there are various latitudes. हमने पढ़ा है कि बहुत सारे latitudes हैं, right? और each latitude, distance between each latitude, this two latitude, distance between 1 and 2, this latitude is about 111 kilometers. Okay? और जनरली इस डिस्टेंस को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, लाइक 2 डिग्री 3 डिग्री. तो इस तरीके से इसे डिग्री में मेजर किया जाता है. सो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि, और डिग्री को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो वो 60 मिनट्स में होता है और मिनट्स को फर्दर डिवाइड किया जाए तो 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है. As the equator is the starting point, it is considered to be 0 degree latitude. अब since equator क्या है, ये सेंटर लाइन क्या है, सेंटर मानी जाती है, मेन लाइन मानी जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द इक्वेटर इज़ 90 डिग्री. अब ये जो डिस्टेंस है, ये पोल और इक्वेटर में जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी जाती है, 90 डिग्री. यू ऑल नो कि ये कितना माना जाता है, 90 डिग्री. सो द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री, राइट. एंड सिमिलरली टू दिस, टू साउथ पोल ये 90 डिग्री होगा, 90 ऑन द बोथ साइड रिस्पेक्टिवली. ओके. So the angular distance of the pole from equator is 90 degree. So the north pole is marked as 90 degree. और north pole को हम क्या मार्क करते हैं, 90 डिग्री मार्क करते हैं. North latitude while the south is marked as 90 degree south latitude. Parallel circles drawn at the interval of 1 degree will thus give us 90 parallels in each hemisphere. Now 1 degree since this is equator, आपको पता है इक्वेटर को हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं. These are the poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट. और नॉर्थ पोल 90 डिग्री होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है, राइट. सिमिलरली जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो साउथ पोल को भी 90 डिग्री कंसिडर किया जाता है. नाउ ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो 1 डिग्री पर ड्रॉ किए जाते हैं, राइट. हर 1 डिग्री के डिफरेंस पर इन्हें ड्रॉ किया जाता है. सपोज दिस इज 0 डिग्री, सो ये होगा 1 डिग्री,
2 degree, then 3 degree. So there are 90 latitudes in the northern part. नॉर्थ पार्ट में, इतने पार्ट में 90 लैटिट्यूड्स होंगे, और फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, एंड सिमिलरली फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ साउथ पोल देर आर 90 and 90, right? Parallel circle drawn at an interval of 1 degree, thus this gives 90 parallels in each hemisphere. द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल. अब इक्वेटर क्या है? एक लॉन्गेस्ट पैरेलल है. सिंस जैसे जैसे हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे और पोल की तरफ मूव करेंगे, ये जो लाइंस हैं ये धीरे धीरे स्मॉल होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी. तो ये हम मानते हैं कि इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है. ठीक है, द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल. As we move away from the equator towards the pole, the length of parallel decreases. The North Pole and the South Pole are 2 points. North Pole और South Pole क्या है? सिर्फ point है. Okay. All latitude in the northern hemisphere are denoted by the letter N, while latitudes in the southern hemisphere are denoted by letter एस. नाउ वो सारे पॉइंट्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये इक्वेटर ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नाउ अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड को डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल कितना होता है? 90 डिग्री, तो हम उसे डिनोट क्या करेंगे? 90 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ. सिमिलरली साउथ पोल में हम क्या करेंगे? 90 डिग्री साउथ. ओके. सो अंडर लैटिट्यूड्स हमने क्या सीखा कि इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है और उसे 0 डिग्री माना जाता है. देर आर टोटल 90 लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 लैटिट्यूड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. नाउ व्हाइल मूविंग टूवर्ड्स द पोल, द लेंथ ऑफ the parallels of latitude keeps on decreasing. और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? जस्ट अ पॉइंट. और उन्हें क्या कितनी डिग्रीज में माना जाता है? 90 डिग्री. और डिनोट कैसे किया जाता है? नॉर्थ, राइट. अगर नॉर्थ पोल है तो 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल है तो 90 डिग्री साउथ.